So let me start off now. I hope it's audible. We're starting off with the second chapter of physics, that is gravitation. I'm sure many other chapters are also going on. So gravitation chapter जो है उसका फर्स्ट लेक्चर है आज, और बहुत सारी बातें ग्रेविटेशन का मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी पता होगा. So it's sort of going to be like a revision today. It is sort of going to be some sort of a checking कि कितना पढ़ा था स्कूल में, क्या याद आ रहा है स्कूल में. Yes. So let's see. Now I don't want anybody to write anything in the chat box. Please. आप लोग जो भी लिख रहे हैं, दर्शन, रोहित, सब बंद कर दे. Just listen. आपको पता है, when I ask you question, you answer. Is that clear? So let's move ahead. पहले सुन लो, अपना ज्ञान हम चेक करेंगे. When I give you polls, that time you show me how much you know. So the first thing that we learned was, और what was the first idea behind it, ये ध्यान से सुनना, ये अपना जो बेस होता है उसको क्लियर करता है. So the first question that arised, सबके मन में जो question सवाल उठ रहा था, ये था कि यार why does the sun rise in the east and set in the west? You know, why it goes from one position to another? या मून जो है एक जगह पे आके फुल मून हो जाता है, फिर वापस चला जाता है. So what's exactly all this? So there was a lot of thought given on this, and they came out with the conclusion that there must be some force of attraction. There must be some force of attraction without making any contact. Do you understand the statement? Without making any contact. Usually force कैसा होता है, जब हम धक्का लगाते तभी force आ रहा है. ये एक ऐसा फोर्स है प्लैनेट्स के बीच में या सन और अर्थ के बीच में कि वो बिना टच किए देयर एग्जिस्ट सम सॉर्ट ऑफ अ फोर्स. सो देयर इज सम फोर्स बिटवीन, जैसे कि मैं बोलूं सन और अर्थ के बीच है, बट फिर भी आप ऑब्जर्व करते कि सन नजदीक नहीं आ रहा है. Isn't it? The sun is not coming towards the earth. There is some force to keep them at a particular position also. ऐसा बोल सकते हैं? There is some force which is keeping them at some position. वो आ नहीं रहा है अपनी तरफ, है कि नहीं? So there are उन्होंने conclude किया कि बहुत ज्यादा force हो सकता है between Earth and the other planets or other stars. So बहुत बहुत theory develop हुई. तो जैसे कि आप जानते हैं कि there is this whole solar system concept and all that. So where did it start from? ये तो हम सबको पता है अब. But where did it all start from? Anybody knows the first scientist who started this? Anybody knows? Pehla scientist. Okay, I can see Kepler, I can see Newton in the chat box, I can see Galileo. Okay. So I can see Kepler, Newton, Galileo, then I can see somebody took the name. Okay. Aditya says Tycho Brahe, Albert Einstein. Einstein भी आ गया. Okay, Karan is saying Aryabhatta. So let's see who started off all this. So 2000 साल पहले, मतलब ये मैं फोर्स का पिक्चर डाल रही थी. You know, we don't know where the force is, isn't it? So this picture is like, अरे there is some force of attraction. मून एक तरफ, सन एक तरफ, अर्थ है बेचारा बीच में. बट अपने को आइडिया नहीं है कौन किसको पुल कर रहा है, कौन नजदीक आ रहा है, व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग, है कि नहीं? So this picture is just to show you that there is some sort of a force between the planets or between the stars and the earth. So let's go and see who is the first scientist who brought about this concept. And you know what is this? Anybody knows looking at the picture? ये क्या है? देखते हैं किसके दिमाग में क्या आता है.
ओके मुझे काफी इंटरेस्टिंग चैटिंग बॉक्स चल रहा है आज। सोलर सिस्टम, जोडियक, स्पेस, ग्रह, एस्ट्रोलॉजी, बाप रे, देर आर सम साइंस, नक्षत्र। काफी इंटरेस्टिंग हो गया 11th स्टैंडर्ड क्लास। क्या ही है एटम, स्पेस। एटम कहाँ दिख रहा है तुझे? एटॉमिक दिख रहा है क्या? एटॉमिक मॉडल जैसा दिख रहा है। अच्छा, चलो चलो, हॉरोस्कोप पे जा रहे हैं लोग। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। 2000 साल पहले टॉलेमी करके एक साइंटिस्ट था, टॉलेमी। ठीक है, उसने पहले जो बोला, उसने कहा कि अर्थ इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। उसने किसको सेंटर पे रखा है? देखो किस कौन सेंटर पे है, आपको दिख रहा है कि अर्थ सेंटर पे है। और ऐसा लग रहा है कि अर्थ सेंटर पे है और बाकी प्लैनेट्स जो है घूम रहे। यू नो व्हाट वाज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज? एनीबॉडी? इस कंसेप्ट को क्या कहते थे? बहुत साल पहले की बात है। टॉलेमी, उसका नाम टॉलेमी था। यू नो हिज नेम वाज टॉलेमी। And this is around 2000 years ago this scientist came out with this concept कि अर्थ सेंटर पे है। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? आई एम श्योर वर्ड तो आपने सुना है, बट आपको अभी याद नहीं आ रहा है। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड? अभी वर्ड आया तो सबका दिमाग चलेगा। जियो सेंट्रिक। जियो मतलब अर्थ, सेंटर पे है। ये कौन लेके आया? टॉलेमी। क्या है उसका नाम? 2000 साल पहले टॉलेमी करके साइंटिस्ट था जिसने कहा कि अर्थ सेंटर पे है और अर्थ के पास बहुत ज्यादा पावर है। बहुत, इतना ज्यादा पावर है बिकॉज रोज आप देखते हैं कि सन आ रहा है कि नहीं? सन ईस्ट में आ रहा है, फिर वापस वो आ रहा है, यानी कि इसके पास तो बहुत पावर है। अर्थ इज एट द सेंटर। क्या था उसका पता है? उसने क्या बोला? उसने कहा कि अर्थ इज एट द सेंटर एंड अर्थ स्टेशनरी। अर्थ स्टेशनरी। आज तो हमें पता है कि ये सब सही नहीं है, बट ही सेड दैट इट इज स्टेशनरी। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। ये कंसेप्ट टॉलेमी ने बहुत साल पहले, 2000 साल पहले ये कंसेप्ट लेके आया। जियोसेंट्रिक, जो पूरी दुनिया मानती थी। इज दैट क्लियर? पूरी दुनिया मान के चल रही थी कि यार यही है कंसेप्ट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। या यू कैन राइट द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, मेनी थियोरीज वर डेवलप्ड इन एस्ट्रोनॉमी। और फर्स्ट पॉइंट टॉलेमी साइंटिस्ट के बारे में आप लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट, मेनी थियोरीज वर डेवलप्ड इन एस्ट्रोनॉमी। आप लिख रहे हैं many theories were developed in astronomy. First scientist is Ptolemy. उसने क्या कहा? उसने कहा कि अर्थ इज एट द सेंटर, अर्थ इज स्टेशनरी and other stars and planets move around it. This theory is, मैं ऊपर लिख रही हूं, this theory is known as geocentric. तन्मय कुछ बोला ही नहीं मैंने, जो भी है वो लिखा है। मेनी थियोरीज वर डेवलप्ड इन एस्ट्रोनॉमी, उतना ही बोला मैंने।
Many theories were developed in astronomy. एक ही सेंटेंस बोला मैंने, और फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम लिखो, उसने जो बोला लिखो, एंड दिस थियरी इज नोन एज जियोसेंट्रिक लिखो बस. Many theories were developed बस. और पहला साइंटिस्ट टॉलेमी, उसका नाम पी साइलेंट है, टॉलेमी. लिखने के बाद जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स. यानी कि पहला कंसेप्ट गलत था, ये तो हम सब जानते हैं कि नहीं. बट ये ना बहुत सालों तक ना पूरी, मतलब व्हाट टू टेल यू, पूरी दुनिया यही मान के चलती थी, जियोसेंट्रिक. यही मान के चलती थी कि अर्थ जो है वो सेंटर पे है और बाकी प्लैनेट सब घूम रहे हैं. प्रियंका, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही सुने बेटा. मुझे ऐसा लग रहा है कि हर बार रिपीट करना इज नॉट पॉसिबल. आई एम ऑलरेडी रिपीटिंग 7-8 टाइम्स. आइदर आप अपना नेट का कनेक्शन ठीक करें, पूरी जनता ने नेट का, पूरी दुनिया इंटरनेट पे एजुकेशन चला रही है. डिजिटल सिस्टम आप जियो का ले ले, आप केबल का ले ले. अभी इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे प्रियंका. एवरी लेक्चर आई गेट दिस मैसेज फ्रॉम यू, एवरी लेक्चर. इट इज नॉट पॉसिबल ओनली. हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स, हमारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स, हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, हमारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स, सारे लोग ऑनलाइन ही तो पढ़ रहे हैं बच्चा. everyone has to bring a good system. What if it is an examination, प्रियंका? आपको पता है कि अगर इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है तो you are disqualified from the exam. This is everywhere, not only here. यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम्स कंडक्ट करती है. So will you tell them the same reason? Every lecture I have been listening to this. I request you to change your existing system. Is that fine? You know how much investment we all have done as teachers. We have bought systems. मैंने तो ऐसा सिस्टम लाया है कि अगर लाइट भी जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी डिस्कनेक्ट होगी, तो भी मेरा नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं होगा. What have I done? You have any idea? So we have all invested. I want complete attention when I am explaining in the class. Is that fine? This is to the entire class. When I start off with the next chapter, I assume my students know. I assume my students know that this is now serious matter. पहले चैप्टर में आप थोड़ा मस्ती करते हैं, it's okay. Clear everyone? Just gear up now. This is not a joke. This is 11th and 12th and you are science students, physics students. I request the entire class to pay attention, and it's an order. It's not even a request. I want you to score, and so this is an order because I really want you to perform. Can I continue now? So we came to Ptolemy, which was the first scientist. और आपको पता है कि उसने जो बोला वो गलत बोला. उसने कहा कि जियोसेंट्रिक है और सेंटर पे है, जो सही तो है नहीं. So this was the concept. Can you imagine this diagram in front of you? Geocentric की theory बनी, जहां अर्थ सेंटर पे था, फिर बाजू में मून है, वीनस है, सन है. ऑल दिस वाज द जियोसेंट्रिक थ्योरी क्रिएटेड बाय द साइंटिस्ट टॉलेमी. आजकल हम जो करते हैं, मतलब अभी तो हमें पता है कि ये थ्योरी भाई गलत है, बट इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट. डोंट यू एग्री? एक अटेम्प्ट तो उन्होंने किया कि समझने के लिए, एक अटेम्प्ट तो किया कि अर्थ क्या है, स्टार्स कैसे हैं, उनका मूवमेंट क्या है, क्या एंगल बनाते हैं, इज देयर सम फोर्स प्रेजेंट. कोशिश तो किया उन्होंने, स्टार्ट तो किया, कंसेप्ट तो बना रहे हैं कुछ. फर्स्ट पर्सन 5000 साल पहले, आई एम श्योर यू सीन दिस पिक्चर. इट्स नॉट वेरी क्लियर राइट नाउ, but I'm sure you have seen this person.
This is Aryabhatta. 15,000 years back की बात है. Aryabhatta was the first person who said that the sun is at the center. Aren't we proud Indians? Aryabhatta was the first person 15,000 years ago जिन्होंने कहा that we don't have geocentric, it is heliocentric. क्या बोलते हैं उसको? What is this theory called as? Heliocentric. Heliocentric का मतलब है sun. Helio मतलब sun. Heliocentric. sun center पे है. ये आर्यभट्टा ने बताया. बट क्या प्रॉब्लम था कि हमारा वेस्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं था. ये जो बात है सिर्फ इंडिया में ही रह गई, मतलब ये स्प्रेड नहीं हुई, बाकी देशों तक नहीं गई. सो ये कंसेप्ट तो पैदा हो गया था किधर, इंडिया में, बट इट डिड नॉट गो फ्रॉम हियर. ये हमारे पुस्तकों में था, हमारे बुक्स में था. यूरोप, यूएस, इनका कुछ लेना देना नहीं था हमारे टेक्नोलॉजी या जो हम सीख रहे थे, हमारे विज्ञान जो चल रहा था इंडिया में. इंडिया वाज काफी अहेड एक्चुअली. हमारे शास्त्रों में जो लिखा था एंड ऑल दैट वाज वेरी मच एडवांस कंपैरेटिवली, बट वी हैड नॉट कम्युनिकेटेड इट टू द वर्ल्ड. तो यूरोप में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे. तो दो लोगों की बात हो गई. कौन है पहला? आपको वो ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, मैं नहीं रख रही. फर्स्ट कौन था? टॉलेमी. सेकंड कौन है? सेकंड कौन है? आर्यभट्टा. तो आई होप यू रोट आर्यभट्टा. यू कैन से आर्यभट्टा 15,000 years ago, यानी कि अराउंड 5000 AD में उन्होंने कंसेप्ट लाया दैट it is the theory is heliocentric theory. So you can write in your own words, sun is at the center. But as I said, again Aryabhatta faced a problem because he had not communicated it with the world. In Europe बहुत सारे रिसर्च चालू था इसके ऊपर, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा था. यूरोप का जो पहला साइंटिस्ट था who came out with this entire theory that the sun is at the center, उनका नाम था कॉपरनिकस. सो थर्ड साइंटिस्ट आपके सामने is कॉपरनिकस. कॉपरनिकस is from 1473 से लेके 1543 तक. उन्होंने कहा कि भाई सन इज एट द सेंटर and planets are all around. Nobody listened to him. Nobody agreed with him. सबने तो उसको बोला कि तू एकदम मतलब बकवास बोल रहा है, ये हो ही नहीं सकता है. अर्थ पावरफुल है, अर्थ सेंटर पे है. उसने बहुत समझाने की कोशिश की. किसने? कॉपरनिकस ने, कि हीलियोसेंट्रिक है, हीलियोसेंट्रिक है, हीलियोसेंट्रिक है. उसको डेथ पेनाल्टी दिया गया. He got a death penalty and he was hanged. Copernicus का disciple, anybody knows who is the disciple of Copernicus? Copernicus का disciple था Galileo. Before I come here, let's talk about Galileo. तो Copernicus का जो disciple था, so I hope you're keeping track record, was Galileo. Everyone knows Galileo, right? So ये इसका डिसाइपल था, शिष्य था. बट गैलीलियो को लोग बहुत मानते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे. आप बता सकते हैं कि पहला उसका व्हाट इज गैलीलियो फेमस फॉर? Okay, I can see telescope. Okay. Actually, Galileo is famous for inertia. Have you heard about inertia? He is famous for mechanics. Inertia, you know, अब बस आप एक गाड़ी में बैठे, गाड़ी लेफ्ट जाता है तो आप किस तरफ झुकते हैं? किस तरफ झुकते हैं आप? राइट की तरफ.
So Galileo gave us the word inertia. Will you remember him? बहुत सारे मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट्स गैलीलियो ने किया था. So everyone respected Galileo a lot, and he also proved, because being a disciple of Copernicus also, having done a lot of work with him, बहुत सारा काम किया था उनके साथ उसने. So he proved कि उन्होंने गैलीलियो जी ने प्रूव किया कि the force of gravity is same for dash mass. कोई बता सकता है? The force of gravity is, कौन बताएगा? कोई भी मास हो, क्या ग्रेविटी डिफरेंट डिफरेंट है कि सेम है? कोई भी मास हो, सेम है. There the force of gravity is same for any mass. All mass के लिए एक ही ग्रेविटी है. कभी सोचा है आपने? कितनी अच्छी बात है ये, है कि नहीं? Such a wonderful theory it is. So Galileo was the person who gave you the theory of inertia. He is the person who gave you the theory of all mechanical. He did so many experiments of mechanics. So most of it that you are studying, उनका जो starting point है, it starts from Galileo. He is the one who gave you the theory. He is the one who gave you the theory that there is some force of attraction between all these planets. So they respected him a lot. उसको ना नहीं बोल सकते थे. बट वो लोग बहुत चालाक थे. उस टाइम के जो लोग थे वो बहुत चालाक थे. उन्होंने कहा कि राइटिंग में दो तुम, यू नो, तुम एक थियोरी को लिख के दो कि अर्थ इज एट द सेंटर. हुक्म चलाया गया उन पर कि आप लिख के दो कि अर्थ सेंटर पे है, और ये जो बात कॉपरनिकस ने कही थी वो गलत है. He has given in writing. गैलीलियो ने राइटिंग में दिया है कि द अर्थ इज एट द सेंटर. बट मरने से पहले उन्होंने ये बोल के भी गए, उन्होंने लिखा है कि आई डू नॉट एग्री विद दिस, बट टू जस्ट सेव माई लाइफ I had to give this in writing. You can imagine the pressure on the scientists those days, isn't it? So but उन्होंने ये माना है कि the sun is at the center. I hope this is very clear to everybody. तो पहले कौन है? Ptolemy, who came out with the geocentric theory. Then came Aryabhatta with his heliocentric theory. यूरोप में कॉपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को ज्यादा बढ़ावा दिया. कॉपरनिकस का डिसाइपल था गैलीलियो, जिन्होंने भी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को माना है. आई होप अभी 4 जन का थियोरी क्लियर है टू एवरीबडी. क्लियर है एवरीवन? यहां तक समझा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? 4 लोगों की बात हो रही है, हम तो आगे बढ़ते हुए. तो तब तक है ना, दुनिया में कहीं ना कहीं चल रहा था कि हाँ भाई ठीक है, सन जो है सेंटर पे है, स्टार्स दूर दूर है, वो कैसे घूमते हैं. आपको पता है लोगों ने बहुत साल इस पर काम किया है. वो कौन से पोजीशन पे आता है, कितने टाइम बाद, दूसरे पोजीशन पे कब आ रहा है, ये सब के बारे में, कि हाउ दे चेंज देयर टाइम ऑफ रोटेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, व्हाट इज द एंगल. जब हम एक एंगल पे देखते हैं, किसने वीनस देखा हुआ है आज तक? मार्स, वीनस किसी ने देखा है? एनीबडी हैज सीन दीज प्लैनेट्स? एनीबडी हैज अ टेलीस्कोप एट होम? कोई है ऐसा? ओके. So all this data about, you know, what's happening, where it is rotating and all, ये डेटा जो है ये कलेक्ट करने का काम किया टाइको ब्राहे ने 1546 से लेके 1601 तक. टाइको ब्राहे को हमें नमन करना चाहिए, बिकॉज ही स्टडीड अ लॉट ऑफ एस्ट्रोनॉमी. 30 years वो प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करते रहे, उसकी पोजीशन, कहां पर कौन सा प्लैनेट है, यू नो, डेटा, बहुत सारा डेटा उन्होंने कलेक्ट किया. माना जाता है कि एक पूरा रूम उनके राइटिंग से भरा हुआ है. एक पूरा रूम, इतना सारा डेटा था. मान लो आज के जमाने में उनको सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ती, और उन्होंने बहुत सारा कंक्लूजन्स निकालना चाह रहे थे,
बट उससे पहले वो गुजर गए. He couldn't do it. So I hope now you know who's the main person whom we should thank astronomy. एस्ट्रोनॉमी का पूरा श्रेय टाइको ब्राहे को जाता है. टाइको ब्राहे का शिष्य था, एनीबडी कैन गेस? टाइको ब्राहे का शिष्य था जोहानिस केपलर. वेरी गुड कौस्तुभ. तो टाइको ब्राहे के जो भी काम हुआ था, जो भी उनके पास नोट्स थे, सब कुछ किसने पढ़ा था, कौन उसके साथ थे? दैट इज जोहानिस केपलर. 1571 से लेके 1630 तक उन्होंने कुछ लॉज बनाए जो आपने स्कूल से आप पढ़ रहे हैं कि प्लैनेट्स कैसे मूव होते हैं, कितने एंगल पे वो मूव होते हैं. सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड इन एस्ट्रोनॉमी. पहले 3 लॉज जो बने एस्ट्रोनॉमी में वो जोहानिस केपलर की वजह से है. He also gave us the force that is there between the planets and the stars. और इसी फोर्स को लेटर ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया गया. तो आपके लिस्ट में अभी कितने साइंटिस्ट हो गए हैं? आपके लिस्ट में, आई होप इफ यू हैव रिटन, आपके लिस्ट में ओके 6 साइंटिस्ट हो गए. टॉलेमी से हमने स्टार्ट किया. टॉलेमी के पास आर्यभट्टा, आर्यभट्टा के बाद आए कॉपरनिकस, कॉपरनिकस का डिसाइपल है गैलीलियो. उसके बाद हमने बात की, किसकी बात की? एस्ट्रोनॉमी का श्रेय किसको जाता है? एस्ट्रोनॉमी का श्रेय सबसे ज्यादा काम टाइको ब्राहे को जाता है. उनका नाम क्या था? टाइको ब्राहे. टाइको ब्राहे के डिसाइपल कौन रहे? जोहानिस केपलर. जोहानिस केपलर के 3 बहुत बेसिक लॉज एस्ट्रोनॉमी में, बहुत फेमस लॉज, और उन्होंने ही फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स करके लेटर माना गया. अब सोचो, ये जो केपलर लॉ है, ये पढ़ के आगे आगे एक साइंटिस्ट ने प्रिंसिपिया करके एक बुक लिखा ऑन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. कौन है वो? वेरी गुड, न्यूटन. सो कौन आया केपलर के बाद? इसी इनके जो 3 लॉज थे, इन्होंने जो पढ़ाई किया, जो टाइको ब्राहे ने पढ़ाई किया, जो जोहानिस केपलर ने पढ़ाई किया, इस सब को लेकर एक पुस्तक लिखा गया विच इज कॉल्ड प्रिंसिपिया. और किसने वो प्रिंसिपिया बुक लिखा? एंड दैट पर्सन इज नथिंग बट, दिस इज द बुक कॉल्ड प्रिंसिपिया. बहुत बड़ा पुस्तक है एंड इट वाज रिटन बाय आइजैक न्यूटन. आई होप अभी आपको वो समझ में आए कि कहाँ से शुरू हुआ. तो अगर हम बोलेंगे 3 सेंटेंस में, अगर आपको समझना है एस्ट्रोनॉमी, एंटायर वर्क काम किसने किया? टाइको ब्राहे ने. कंक्लूजन किसने लिखा? केपलर ने. इस सबको कंपाइल करके एक बुक में किसने डाला? न्यूटन ने. आर यू गेटिंग इट? आई होप यू गेट इट. कि सारा काम, जो ऑब्जर्वेशन का काम है, जो डेटा कलेक्ट करने का काम है, वो सब टाइको ब्राहे ने किया. तो हम लोग जब शुरुआत करते हैं फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर की, तो हम पहले पढ़ेंगे केपलर के 3 लॉज. बट याद रखना है एज अ साइंस स्टूडेंट कि काम, क्रेडिट किसको मिलना चाहिए था? टाइको ब्राहे को. पूरा एक प्लैनेट को देखने का, फिर कितने घंटे बाद वो रोटेट होके आता है, ये सब किसने किया? टाइको ब्राहे ने किया. डेटा का कंक्लूजन निकाला केपलर ने. उन सब को कंक्लूड करके एक पुस्तक लिखा और उस पर अपने थियरी, दैट इज द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पर जिसने फाइनलाइज किया, दैट इज सर आइजैक न्यूटन. So now can we, so that's what you will study about the Newton's law of gravitation. Have you seen the Newton's law of gravitation? I'm sure 100% you have seen this. We have heard so many stories about it in our life. So I hope you now know कि कहाँ से ये शुरू होके हम कहाँ तक पहुंचे हैं. So at the end of this part, the first part,
of this chapter or the beginning of the chapter, can I say that you have understood the journey from where we started and where we are now? From geocentric to heliocentric to Kepler's laws to Newton's laws of gravitation. That is the first part of this chapter. Has everyone understood the first part? Can I move forward? Okay. So now the second point, after you must have now got 7 scientists in your list, I believe. 7 scientists का list आपके book में होगा अभी. So पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, that is Kepler's laws. So Kepler के laws, what does it deal with? So this could be like the second point that you are mentioning in your notebook about the Kepler's laws. He had 3 laws. Anybody remembers? 3 laws थे. One was the law of orbit. Yes. Second law was the law of area. I'm sure you're understanding all this because ये एक revision जैसा है तुम्हारे लिए. And the third is the law of time. है कि नहीं? 3 laws थे. Law of orbit, law of area, law of time. So अगर किसी ने पूछा कि what is Kepler's laws, so you will say that Kepler's laws deals in astronomy in the motion. किसमें डील करता है? In the motion of planets and stars. A very important part, and these laws helped Newton to find, or we can say establish, the theory or laws of gravity. Yes, Aditya. Is this understood, everyone? So can you write this for Kepler's laws? The first slide on Kepler's laws. Please take it down quickly. Any doubt or difficulty, you can tell me. This is very simple part, but it's a very exciting chapter because it goes up to the satellite concept, and I'm sure that you're done writing, everybody. Yeah, I know it's kind of a revision, right? So you can write your own laws. कुछ लोगों को तो by heart ही होगा laws, मुझे लग रहा है कि नहीं? Right. Some of you all must be remembering your wonderful teachers in school who must have taught you this, isn't it? कुछ लोगों ने इस पे projects बनाया होगा. I'm sure that you must have done a lot of activities. Yes, I can see all of you writing a lot of laws in the chat box. Okay. Tell me when it is done. अच्छा, स्कूल ही नहीं गए थे तुम लोग? तुम लोग ऑनलाइन ही थे? ऑनलाइन की जिंदगी है.
Oh, is it Jessica? That's lovely. Okay. I was from Divine Child. I don't know if any of you are from Divine Child High School. Andheri people will know the school's name. So I belong to Divine Child 98 batch. Okay. Canossa. Okay, I know Canossa. Yeah. Disha Copernicus. Disha Copernicus. Okay. अच्छा तुमको सिर्फ न्यूटन्स लॉस था. ओके लेट्स गेट इनटू दिस एंड चेक. यहाँ तक सबने लिख दिया. कैन आई मूव फॉरवर्ड गाइस? आगे बढ़ू? ओके सो लेट्स स्टार्ट ऑफ नाउ. केपलर के 3 लॉज में हम पहले लॉ को पढ़ने वाले हैं. दैट इज द लॉ ऑफ द ऑर्बिट. Right, we are going to get into the first law, that is the law of the orbit. So what is this first law state? ये एक statement है उनका. It states that all the planets move around the sun in elliptical orbits with the sun at one of the foci or focus, not at the center of the orbit. Kepler's first law states, anybody can read it out to me? कौन पढ़ेगा? स्क्रीन में देख के ही पढ़ना है. कौन पढ़ेगा? ओके आशीष. यस बेटा पढ़ो. Kepler's first law states that all the planets move around the sun in the elliptical orbit with the sun at one of the focus, not at the center of orbit. Okay, thank you so much Ashish. Yes, anybody else wants to read? Anybody else wants to read so others can listen? And anybody else? Okay Aksh, पढ़ लो. Kepler's first law states that all planets move around the sun in elliptical orbit with sun at one of the focus, not at center of orbit. Okay, thank you Aksh. Anjali Singh. Anjali Singh. Kepler's first law states that all planets move around the sun in elliptical orbits with sun at one of the focus, not at the center of orbit. Excellent. So we had 3 people who read out the statement for us. Now listen. अभी इसका ये मतलब है कि एक तो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है. छोटी छोटी बातें हैं बट दिमाग को क्लियर करने हैं. एक तो ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है. सेकंड इलेप्टिकल ऑर्बिट है. थर्ड इलेप्टिकल में एक सेंटर पॉइंट नहीं रहता, 2 फोकाई रहते हैं. क्या रहते हैं? 2 फोकाई. So this is the statement that first I want you to take down. Can you take this down first? So it means basically that the planets move around the sun and their path is not a circle, isn't it? It is not a circle, it is an ellipse. Yes, ओवल शेप है, अंडे जैसा. ठीक है. अच्छा, प्लैनेट्स जो मूव करते हैं या जिस पाथ पर वो मूव करते हैं उसका नाम क्या है? ये पाथ का नाम क्या है? द पाथ ऑन विच द प्लैनेट्स मूव are called as orbits. So I'm sure you're enjoying this because you know it. So it's all the more enjoyable. And the shape of this orbit is nothing but a ellipse. है कि नहीं?
Can you write this down? Can you write this slide down quickly? थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे बट परफेक्ट पढ़ेंगे, परफेक्ट पढ़ेंगे एकदम। आदित्य और आशीष का हो गया है, सुपर फास्ट हो यार तुम लोग। हैंडराइटिंग भी नीट ही रख रहे हो ना मगर। हाँ, रोहित का हो गया है, मेघा, प्रियंका, कुणाल, कौस्तुभ, तन्मय, सेजल, तरुण, सुपर नीट, वेरी गुड। थोड़ा बहुत रीडेबल रखो। सी, इट इज नॉट अबाउट द हैंडराइटिंग, इट इज ऑलवेज अबाउट सामने वाला पढ़ लेना चाहिए, है कि नहीं? प्रशांत, तुमने जो लिखा तुमको वापस लिखना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को सिर्फ 3 तुमने कुछ लिखा है। हाँ, मैं आ रही हूँ बेटा। प्रशांत रुक जाओ, आ रही हूँ। हुआ नहीं है अभी तक, सिर्फ स्टेटमेंट लिखने को बोला, अभी आ रही हूँ उस पर। तो थोड़ा और जाते हैं केपलर्स लॉ की तरफ, एज टू व्हाट्स हैपनिंग। So the first law is telling us that all the planets are moving around the sun in elliptical orbits and having sun as one of the foci. So let's understand a little more about this. Can I explain? So this I am explaining the Kepler's law in a little detail. Kepler's first law, basically I am going to tell. So somebody is asking me that ये shape कैसा दिखता है? Do you agree ऐसा कुछ दिखता है? इसके 2 एक्सिस होते हैं, दिस इज इलेप्टिकल शेप, एंड इसके 2 एक्सिस होते हैं। इस एक्सिस को बोलते हैं, एनीवन रिमेम्बर्स इस एक्सिस को क्या बोलते हैं और इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? जो बड़ा वाला एक्सिस होता है उसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, और ये जो शॉर्टर वाला है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। And this shape, this is the elliptical shape. Elliptical orbit या elliptical shape कहते हैं इसको। अब इसका क्या है, केपलर का फर्स्ट लॉ हमें क्या बता रहा है? फॉर एग्जाम्पल, so they have considered 2 focus. एक फोकस यहां होता है, so I can call it as foci 1 and I can call this as foci 2. Is that okay? I'm just calling it as names, foci 1 and foci 2. तो इसके 2 सेंटर है, यानी कि एक कॉमन सेंटर नहीं है। एक फोकस यहाँ पर है, इलिप्स का दूसरा फोकस यहाँ पर है। अब वो क्या बता रहा है, अगर एक प्लैनेट है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं प्लैनेट की, तो सन को आइदर वो बोल रहा है, केपलर बोल रहा है, यहाँ इमेजिन कर सकते हैं आप, या आप इमेजिन कर सकते हैं कि सन ये फोकस पे है। इट्स अप टू यू। So let us assume that the sun is on this focus and there is one planet here. देखो एक planet दिख रहा है यहाँ पे, एक planet यहाँ पर है। I hope you can see my planet. This is the planet. दिख रहा है सबको planet? अब अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक का distance measure किया, तो ध्यान से सुनना, let's call this distance as R1 और इसका distance to foci 2 will be R2. So what Kepler is telling, Kepler बोलता है कि R1 plus R2 एक क्वांटिटी आएगी कि नहीं, R1 plus R2। एक प्लैनेट लिया, उसको फोकाई 1 से मार्क किया, फोकाई 2 से मार्क किया, तो ये R1 R2। समझो वो प्लैनेट यहाँ पहुंच गया, फॉर एग्जाम्पल वो घूम रहा है ना, घूम के, या यू कैन कंसिडर इट इज मूविंग टू अनदर लोकेशन। अब देखो यहां से मैं मार्क करूं तो ये बन गया मेरा R1, यहाँ फोकाई 2 के साथ में अटैच करूं तो ये बन गया मेरा R2। तो डू आई गेट अनदर क्वांटिटी? दूसरा पोजीशन है ना, ये मेरा पोजीशन 1 है, ये मेरा पोजीशन 2 है, तो मेरे को वापस क्या मिल रहा है, R1 R2। ही इज सेइंग दैट इट विल बी सेम। तुमको समझा उसका थियरी क्या है?
वो बोल रहा है कि वो सेम ही होगा. लेट्स इमेजिन इट वाज ऑन दिस पोजीशन, नीचे है. तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम R1 बोलेंगे, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम R2 बोलेंगे. वापस बोल रहा है ये इक्वल होगा, R1 प्लस R2 वापस कांस्टेंट होगा. यानी कि इस पाथ पर मतलब ऐसा उसने हजारों पॉइंट्स लिया रहेगा, और ये पाथ में जो भी पॉइंट है उसको अगर हम मार्क करते जाएंगे तो हमें जो पॉइंट्स मार्क हो रहे हैं वो एक इलिप्स फॉर्म में होगा. समझ रहा है सबको ये बात? वापस मैं एक और बार बता रही हूँ. 2 पॉइंट्स लिए गए, एक पोजीशन पे सन को इमेजिन किया है. प्लैनेट एक पोजीशन में है, पहले पोजीशन में, फिर यहाँ गया मान लेते, यहाँ गया मान लेते, यहाँ गया मान लेते. और उन्होंने क्या किया, R1 R2 मार्क करते गए, R1 R2 मार्क करते गए. उन्होंने देखा कि सारा वैल्यूज जब सेम होता है, अगर ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो इलिप्स बनता है. समझ में आया? पहले इलिप्स नहीं बना रहे, पहले से प्लैनेट को फॉलो कर रहे हैं और सन से डिस्टेंस नापते जा रहे हैं. 2 फोकाई पॉइंट सिलेक्ट हुआ है, एक जगह पे हम सन को मान रहे हैं, और R1 R2 R1 R2 R1 R2 सबको ऐड करते जा रहे हैं. और जब ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो कौन सा शेप बनता है? इलिप्स बनता है. ये क्लियर है सबको? एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट आई जस्ट सेड? Anyone has any doubt in this? So हम कहीं पर भी एक प्लैनेट के पोजीशन को देखते जाएंगे, कोई भी पॉइंट आप ले लो. तो हमने देखा कि ये जो ऑर्बिट जो बन रहा है, कैन आई से दिस इज द शेप ऑफ द ऑर्बिट? यस और नो? ये शेप ऑफ द ऑर्बिट ही बनेगा, और ये जो शेप ऑफ द ऑर्बिट बन रहा है वो शेप एलिप्स का बन रहा है. So the orbit of the planets, can I make that statement? I can say the orbit of planets around the sun is in the shape of ellipse. Sun is at any one focus of the ellipse. So this tells us about the shape of the orbit. This tells us about the shape of the orbit. तो पहला लॉ इज टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिट. मतलब इसमें एक क्या बोलते, फाइनलाइजेशन हो गई, एक एस्टैब्लिशमेंट कर दिया है ने, फाइनल कर दिया. भाई इतने लोगों ने इतना मेहनत किया, हम फाइनली बोल रहे हैं कि जो शेप बनेगा वो सर्कुलर नहीं, वो एलिप्टिकल बनेगा. नो Neha, we are just considering the sun to be at one of the locations. Is that clear? We are considering the sun to be at foci पे concentrate करो. 2 पॉइंट्स लिए इक्विडिस्टेंस और प्लैनेट के पोजीशन पर बैठ के इन सबके मेजरमेंट्स कैलकुलेट करके गए. तो उन्हें ये समझा कि ये सर्कुलर तो नहीं हो सकता, सर्कुलर बिल्कुल भी नहीं है. Is that understood? Because you will find that sometimes it is far away, sometimes it is very close to you. है कि नहीं? मून को ही देख लो ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत दूर है, और कभी कभी ऐसा लगता है भाई इधर ही है कि नहीं, इधर ही है, ऐसा लग रहा है कि it's, you are very close to it. So that concept has to be made clear. So in some places on the earth you will find that you are very close to them, and in some places on the earth you will find they are very far away from them. Can you take down this slide, guys? Any doubt or difficulty, you can put it in the chat box. This is the first law जो हमें shape of the orbit के बारे में बता रहा है. Any doubt or difficulty?
You can put it in the chat box. कोई भी difficult. या दर्शन ड्रॉ करेंगे तो बेटर हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, मतलब इसको लेके वापस टाइम क्यों ये करना है, अभी खत्म कर दो, ठीक है, फटाक से हो जाएगा. यू ऑल आर फास्ट, इजंट इट? कुछ लोग का हो गया, आशीष बोल रहा है कि उसका हो गया है, आशीष पुजारी. यस यस सोनम, R1 R2 हमेशा अलग रहेगा. यप, बट उनका जो समेशन है वो सेम रहेगा, समझ रहा बच्चा? इट्स लाइक 5 + 3 = 3 + 5 होने वाला है हर बार. आई मीन इट विल कीप ऑन, बट दोनों का जो एडिशन क्वांटिटी होगा वो हमेशा सेम रहेगा. R1 + R2 at all these positions will be same, which decides what kind of shape it is formed. Yeah, they took, no, not average, addition. Average is different. Average would be like R1 + R2 divided by. So they have just taken different positions and they've taken the addition. Average word tab aata hai when you have lot of multiple readings. Yes, Aditya, correct. Aditya is giving us an example. He's saying 5 + 3 = 1 + 7 = 2 + 6 = 4 + 4. 4 + 4 नहीं होगा, 3 + 5. वो भी हो सकता है, 4 + 4 भी हो सकता है. यस 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 आदर्श. सो तीनों कर लेते केपलर के तो फिर थोड़ा सा और दिमाग चलेगा, वो क्लैरिटी आएगी. हाँ, सो R1 + R2 = R1 + R2. ऐसे ही सारे कांस्टेंट ही जाते रहेंगे, सारे जो डिस्टेंसेस है वो कांस्टेंट माने जाएंगे. या डन. प्रियंका का हो गया है, सेजल का हो गया है, आगे बढ़े. ओके, अक्ष को 1 मिनट चाहिए क्लास. अक्ष 1 मिनट मांग रहा है क्लास से. क्लास पानी पी सकता है तब तक. अक्ष मुझे बता देना कब हो रहा है. प्रीवियस स्लाइड, वैसे भी स्लाइड शेयर हो जाएगा करण, टेंशन नहीं है. दिस आई जस्ट थॉट दैट दिस इज द प्रीवियस स्लाइड and this slide I think everyone has taken it down already, right? So this was that previous encyclopedia ka slide hai ye, and this is what. Aksh, have you finished? करण वैसे भी वो शेयर हो जाएगा ना बच्चा PDF में, तो क्यों डेटा बढ़ाना है फोन का? अगर आप स्क्रीनशॉट मार रहे हैं तो भी डेटा बढ़ रहा है ना फोन का. तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो. तो हमारा केपलर का फर्स्ट लॉ हो गया. केपलर का सेकेंड लॉ, have you studied the second law? It states that, अगर आप second law देखेंगे, it states that the line joining the sun and the planet sweeps equal area in equal interval of time. मतलब क्या है? एक छोटा सा मतलब इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि क्या बता क्या रहा है. So I've already drawn this here. So suppose, but I'll draw this separately. मान लेते हैं ये आपका एलिप्स है, राइट? आपको पता है दिस इज योर माइनर एक्सिस, आपको पता है दिस इज योर मेजर एक्सिस. ओके, प्लैनेट का एक पोजीशन देख लेते हैं. सपोज वो यहां से, आई विल यूज अनदर कलर, यहां से यहां तक गया एक दिन में, दिखाई दे रहा है? 1 day में
द प्लैनेट ट्रेवल्ड फ्रॉम हियर टू हियर, सन यहाँ पर है, तो एक दिन में वो पोजीशन 1 से इस पोजीशन में गया। हमने क्या किया, इस लाइन को ऐसे ज्वाइन किया, इस लाइन को ऐसे ज्वाइन किया, तो कैन आई से द एरिया कवर्ड इज दिस मच इन 1 डे? अरे समझ रहा है? द लाइन joining the sun and the planets sweeps out equal area and equal interval of time. 1 पोजीशन से 2 पोजीशन आने के लिए उसको कुछ तो वेलोसिटी लगा होगा। डू यू एग्री? उसको कुछ तो वेलोसिटी लगा होगा। मान लेते हैं कि वो यहां पहुंचा, देखो यहां पहुंचा, ठीक है, और ये लेते हैं एज 3 थर्ड पॉइंट और ये लेते हैं 4th पॉइंट। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन करेंगे, हम इसको ज्वाइन करेंगे, और कैन आई से द एरिया कवर्ड इज दिस मच? एरिया दिख रहा है, इसमें एरिया देखना है आपको। कैन यू सी द एरिया कवर्ड इज दिस मच? सो कुछ तो टाइम में, यहाँ पर भी एक दिन में, यहां से वो यहां पहुंचा विद सम वेलोसिटी, लेट्स से द वेलोसिटी इज v2. So it states that the line joining the sun and the planets sweeps out equal area. दोनों केस में एरिया इक्वल होता है, वो बोल रहा है। एरिया क्या होता है my dear children? Half base into height. What he is trying to tell us is half base into height is equal to half of base into height. यानी कि ये कहीं पर भी जाए, उसका जो एरिया कवर्ड होता है वो इक्वल होता है। दिस इज इज सेकंड लॉ which we will study a little more. Have you understood the statement of this law? Who's going to read it out? कौन पढ़ेगा? 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके दिमाग में बैठता है। ओके, लास्ट टाइम किसने नहीं बोला था? मेघा, वी स्टार्ट विथ यू। Kepler's second law states that the line joining the sun and the planet sweeps out equal areas in the equal interval of time. Thank you, Megha. Who else? Aksh, last time तुम बोले थे, right? We'll give a chance to Neha. Neha Salva. Savla. Kepler's second law states that the line joining the sun and the planet sweeps out equal areas in equal intervals of time. Thank you, Neha. Welcome. Ekta Mishra. Kepler's second law states that the line joining the sun and planet sweeps out equal area in equal interval of time. Thank you, Ekta. अब एक लड़के की बारी। Who will say? हर्ष. Yes, Miss. Good. Yeah. Good evening, Miss. Good evening, Harsh. Yeah. Kepler's second law states that the line joining the sun and the planet sweeps out equal areas in equal interval of time. Thank you so much. Yeah. So I hope that you all are getting it because it's a revision for you all also. But at the same time, diagram is understood, I believe. कि वो जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है, वेलोसिटी एक दिन लगा रहा है, जितना वेलोसिटी लग रहा है वो बोल रहा है कि वो इक्वल होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ इट, यू नो, दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। हाफ v1 r1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ v2 r2। यानी कि ये एरिया कितना होता है? इट इज वेलोसिटी फॉर दैट स्मॉल डिस्टेंस जो आपका बेस बन रहा है, और आपका हाइट मतलब r1 है। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन। प्लैनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा r बन रहा है, ये हमारा r1 है कि नहीं? ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है? r1 है। यही वो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? r2 है। सिंगल पॉइंट से हम ले रहे हैं। तो केपलर का सेकेंड लॉ कहता है कि जो एरिया वो स्वीप करेगा वो इक्वल होगा। तो अगर ऐसा है, कैन आई से यू टेल मी, कैन आई से v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1? चलेगा? हमने क्या इससे पहले लिखा था? हाफ v1 r1 इज इक्वल टू, अगर हाफ v2 r2 है तो क्या हम बोल सकते हैं v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1? यस और नो?
इसका ये मतलब है कि द वेलोसिटी रेशियो, कैन आई से दैट द वेलोसिटी का रेशियो इज इनवर्स टू रेडियस वेक्टर रेशियो। ये रेडियस वेक्टर है ना, तो वो रेडियस वेक्टर के रेशियो से वो कैसा है, इनवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो कैन आई से वेलोसिटी एंड रेडियस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बराबर है ना। एक तो डिस्टेंस दूर था और दूसरा वाला काफी करीब था, आपने देखा वेलोसिटी और रेडियस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर रेडियस ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, डू यू एग्री। अगर रेडियस ज्यादा है तो वो जल्दी पहुंचेगा, वेलोसिटी कम होगी, और अगर रेडियस छोटा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। बट क्या ये एक ही टाइम में हो रहा है, मतलब एक ही दिन में हुआ, इधर भी 1 डे लगा, वो साइड में भी 1 डे ही लगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। रेडियस बढ़ा बट वेलोसिटी फास्ट हो गया, इसकी वजह से यहां पर भी एक ही दिन लगा, वहां पर भी एक ही दिन लगा। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल, टाइम सेम है। दिस इज हाउ द प्लैनेट्स, आप इमेजिन करो द प्लैनेट्स वेलोसिटी, आप एक दिन में एग्जैक्टली 1 चक्कर मार रहे हैं। आप 365 डेज में आप पूरा सन के एक रेवोल्यूशन मार रहे हैं। सो दिस इज हाउ द प्लैनेट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। वेलोसिटी हर बार चेंज होगा, बट उसके साथ क्या चेंज हो रहा है, रेडियस भी तो चेंज हो रहा है। बट कंट्रोल कौन करता है, कैन आई से द एरिया इज कंट्रोलिंग ऑल ऑफ दिस। कैन वी कॉल इट एज द बेसिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबको एंगुलर मोमेंटम पता है, एवरीवन नोज एंगुलर। केपलर का सेकेंड लॉ is based on the law of conservation of angular momentum. Kepler का second law, Kepler's second law is based on angular momentum. You know what is angular momentum? Angular momentum is nothing but, yes, linear momentum into radius vector और मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। सोचो ना, सेम प्लैनेट है ना जो लेफ्ट साइड पे दिख रहा है और राइट, सेम प्लैनेट मतलब मास तो सेम ही रहेगा। अर्थ की बात हो रही है, अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, तो अर्थ का मास तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो कैन आई से दैट mv1r1 इज इक्वल टू mv2r2, बोल सकते हैं कि नहीं। सो mm क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको वही मिलने वाला है। यू विल गेट v1r1 इज इक्वल टू v2r2 एंड यू विल गेट v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1। ये क्लियर है सबको। सो इट इज बेस्ड ऑन द एंगुलर मोमेंटम। इन अदर वर्ड्स आई कैन इवन राइट इट समथिंग लाइक दिस। I can say L1 is equal to L2, that is angular momentum in the first case. So I can say this is from the conservation of angular momentum, कि दोनों केस में अपना mv1r1 will become equal to mv2r2. That means v1r1 is equal to v2r2. I am multiplying by half on both sides, half base into height. इसका मतलब क्या है कि एरिया, I can say area at time, or let's say at time t1 is equal to area at time t2, or I could say area at position a1 या position 1 is equal to area at position 2, ये बोल सकते हैं हम लोग। ये केपलर का सेकेंड लॉ है। केपलर का सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जहां पर हम बोल सकते हैं कि जो एरिया यहां कवर हो रहा है, सबको ये दिख रहा है, जो एरिया यहां कवर हो रहा है that should be equal to the area that is covered in the second case.
एट द सेम, और सेम ही टाइम लग रहा है, यहाँ पर भी एक ही दिन लगा टू गो फ्रॉम 1 to 2, यहाँ पर भी एक ही दिन लगा टू गो फ्रॉम 3 to 4, but the area will remain same. Have you guys understood this? Is it clear to everybody? Can you take down the law? Have you taken down the law, Kepler's second law? डायग्राम ड्रॉ किया? केप्लर्स सेकेंड लॉ के नीचे डायग्राम ड्रॉ करो. डायग्राम हैव यू मेड? सबने ड्रॉ किया है? सम हैव मेड. हाफ बेस इनटू हाइट आदित्य, हाफ बेस इनटू हाइट. So the velocity from position 1 to 2 is taken as the velocity. ये बेस हो गया और ये जो r है वो हाइट हो गया. समझ में आया? ये जो बेस है यहाँ पर वो बेस हो गया और ये जो है वो हाइट हो गया. यहाँ पर भी ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया. Yeah, this is the black slide. Yes, Alok, you want to say something? आपने हाथ उठाया है. ओके, प्रीवियस स्लाइड चाहिए. ओके ओके, मेघा, दर्शन, या प्रीवियस स्लाइड. या लिख के हो गया सबका? कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? Okay, next slide. Alok, what do you want to say, beta? What is the matter? हाँ, बिकॉज कुणाल, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, V1 R1 इज इक्वल टू V2 R2. V2 को नीचे लेके आना है और R1 राइट साइड पे जाएगा. तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 आ रहा है ना. इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं. इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं. नो नो नेहा, वेलोसिटी वाइज थोड़ा डिफरेंट रहेगा. मतलब एक थोड़ा स्लो होगा, एक थोड़ा फास्ट होगा. समझ रहे? बट उसका आर भी तो बदल रहा है ना. इट्स द सेम थिंग. लाइक हम लोग थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2. हर जगह पे सेम सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है. या L इन दिस स्लाइड मींस एंगुलर मोमेंटम. L का मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है. नो, दोनों एरिया सेम है बेटा. लोक, it is as good as saying half into 3 into 5, half into 5 into 3. समझ रहे? रेडियस बढ़ गया बट वेलोसिटी कम हो जाता है, इसलिए तो मैंने V1 V2 डाला है. समझ रहे? वो तो दूर है ना, उसका पोजीशन. इट्स नॉट सर्क्यूलर. शेप कैसा है? एलिप्टिकल है. बट वो बोल रहा है कि इस तरीके का शेप है. मतलब जो डेटा उन्होंने लिया, जो कैलकुलेशंस उन्होंने किया, उसके हिसाब से वो बोल रहा है कि हाफ बेस इनटू हाइट. स्पीड भी तो बढ़ेगा ना. स्पीड तो चेंज होगा ना. हर जगह पे वेलोसिटी सेम थोड़े ना है. हर जगह पे वेलोसिटी सेम रहेगी क्या? कभी नहीं. हर जगह पे वेलोसिटी बदलती जाती है. करेक्ट, यस. दैट इज द रीजन वी हैव लॉन्गर नाइट्स. जैसे सीजन चेंज होता है तो अपना डेज और नाइट्स में भी कैलकुलेशन आगे पीछे जाता है. हमने पढ़ा ना, सोलार डे, सिडरल डे, लूनार मंथ, याद है?
Yes, Alok, correct beta. It will vary. It is going to change at every time. इसलिए तो inversely proportional बोल रहा है. Radius ज्यादा तो velocity कम, radius कम तो velocity ज्यादा. So this will keep on happening throughout the shape of that ellipse. हर बार velocity radius बदलते जाएगा क्योंकि हम with respect to sun ले रहे हैं. Okay, Karan is coming out with Uttarayan and Dakshina. Uttarayan, Dakshina. Yes, yes. Yes, Google will give you a lot of things. Yeah. Yes, yes. So my smart children, have you finished? ये slide हो गया. I have just multiplied both sides by half to show you that it is area. मैंने सिर्फ दोनों साइड को हाफ हाफ करके आपको एरिया दिखाने के लिए किया. Yeah, we will see with time, Neha. अभी बहुत chapter बाकी है. Why, that and all we will see. Yes. There are a lot of other things, no? Force भी पढ़ना है. Gravitation भी आएगा अभी. सारे topics अभी join करना है. हम सिर्फ अभी केपलर के law को define कर रहे हैं. I hope this slide is complete. So I have the diagram of this. So I'll just remove this explanation so you can see this. अभी दिख रहा है क्या सबको केपलर का planetary second motion? I hope you can understand by this diagram much better. ये एनसाइक्लोपीडिया का पिक है जहां पर रेडियस वेक्टर जो है एक महीना आप सन का पोजीशन देख सकते हैं, आप प्लैनेट का पोजीशन देख सकते हैं. यहाँ पर A1 और A2 इक्वल हो जाएगा. I hope this is a self explanatory diagram. ये डायग्राम से आपका काफी दिमाग क्लियर होना चाहिए. इस पिक्चर को देख के क्लियर हो जाना चाहिए. तो जो एरिया जो यहाँ 1 month में हो रहा है वहां पर भी 1 month है, बट ऑब्वियसली द वेलोसिटी एंड द रेडियस आर डिफरेंट. Clear? Have you understood from this diagram? This is Kepler's second law. So who was the first scientist we spoke about? किसको याद है? कौन से first scientist की बात हुई हमारे? हमने किसकी बात की? What was his name? कुछ केमिस्ट्री नाम दे रहे तुम लोग उसको. बाप रे, स्पेलिंग मिस्टेक देखो. टॉनमी, टिंटान, उनका नाम वो खुद भी भूल जाएंगे. Yes, Ptolemy was the first scientist. Second scientist कौन था? Who was the first person? आर्यभट्टा. आर्यभट्टा के बाद कौन आया? आर्यभट्टा के बाद कौन था? कॉपरनिकस. वेरी गुड. कॉपरनिकस का डिसाइपल कौन था? कॉपरनिकस का डिसाइपल था गैलीलियो. उसके बाद कौन आया? गैलीलियो के बाद कौन आया? हुज एस्ट्रोनॉमी को थैंक्स. यस, टाइको ब्राहे. टाइको ब्राहे का डिसाइपल कौन था? टाइको ब्राहे का डिसाइपल था केपलर. केपलर के 3 लॉज. काम किसने किया? टाइको ब्राहे ने. कंक्लूजन किसने किया? कंक्लूजन किसका है? केपलर का, जोहानस केपलर. और सारी चीजों को बुक में किसने डाला? और अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने लिखा? प्रिंसिपिया करके बुक किसने लिखा? यस, आइजैक न्यूटन. सर आइजैक न्यूटन ने फाइनल कंक्लूजन किया. तो हम क्या पढ़ रहे हैं? केपलर का फर्स्ट लॉ, केपलर का सेकेंड लॉ. I don't have time for Kepler's third law, but I thought I will just, so this is one of the another diagram to explain Kepler का second law. Kepler का third law सबको पता है? Anyone remembers Kepler's third law?
So one more thing I wanted to point out from this, that planet moves fastest when nearest to the sun. Is this statement correct? Is the statement correct? Because आपको जब MCQs पूछे जाएंगे तो काफी ऐसा ट्रू और फॉल्स की बात होगी, है कि नहीं? जो रेडियस कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, बराबर है ना? रेडियस कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो अगर वो सन के पास है तो उसका स्पीड उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि v और r इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब एक प्लैनेट अपने ऑर्बिट में सन के चक्कर लगाता है, तब जब वो सन के बहुत ही नजदीक होता है तो उसका स्पीड थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। इज दैट अंडरस्टूड एवरीवन? यप, we'll come to all that cost थोड़ा सा लेटर। मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ाने की आदत है, सब कुछ मिक्स होगा ना तो बहुत सारे जन कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटा ज्यादा टर्म्स यूज नहीं करना है लेक्चर में, समझ रहे? सब कुछ मैंने बोल दिया एक ही लेक्चर में, तो कुछ लोग तो यार बोलेंगे मैं साइंस ही छोड़ रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। तो सब कुछ साथ में नहीं पढ़ना है। हर एक ब्रांच में अपने अपने डिफिकल्टीज हैं, बट साइंस में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, हमेशा याद रखना ये बात। जो साइंस लेता है उसके सामने 1000 दरवाजे खुलते हैं, इसके लिए आपने साइंस लिया है, इसलिए लोगों ने आपसे साइंस लेने को बोला है, क्योंकि दरवाजे 1000 खुलेंगे। लिमिटेड डोर्स नहीं है आपके लिए, आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू नो फिजिक्स। फिजिक्स इज लाइफ, फिजिक्स इज एवरीथिंग। सो फिजिक्स के बिना तो कोई जीवन है ही नहीं। आप जो बैठे हैं उसको फिजिक्स की वजह से, ग्रेविटी के बिना कुछ हो सकता है? फिजिक्स एवरीवेयर। सोचो हम लटक रहे हैं एक गोले के ऊपर, दैट्स व्हाट। So I have the third law, but I thought the third law we can continue in the next lecture. Is that okay? फर्स्ट और सेकेंड लॉ हमने पढ़ लिया, थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ ली, तो हम जो थर्ड लॉ है, जो टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब वाला लॉ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट फाइन? सो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। एंड can I show you a small video? Can I show you a small video? Okay, 1 minute. Please tell me if you can't hear it. Objective. To understand the Kepler's laws of planetary motion. The earliest known theory on planetary motion was Ptolemy's geocentric theory of planetary motion in the 2nd century, which suggested that the Earth was stationary at the center of the universe and the stars and the planets, including the Sun, revolved around it. Nicolaus Copernicus, in the 16th century, theorized that the Sun is fixed at the center of the universe and all the planets moved around it in perfect circles. His theory was known as the heliocentric theory of planetary motion. Tycho Brahe had researched the motion of planets for over 20 years, but did not live long enough to analyze the data he had collected. Kepler consolidated Tycho's data to put forth his 3 laws of planetary motion. Kepler's first law, the law of orbits. Contrary to the popular belief, planets don't revolve in circular orbits around the Sun. They move in elliptical orbits. So, what is an ellipse? An ellipse can be drawn using 2 pushpins placed on a straight line. Using a string, when the pencil is rotated around the pushpins, ellipse is formed. Kepler's first law states that all planets move around the Sun in elliptical orbits with the Sun at one of the foci. Kepler's second law, the law of areas. Kepler's second law states that the line joining the Sun and planet sweeps out equal areas in equal intervals of time. For example, the area swept by the Earth in March and April
equals the area swept in May and June. Kepler's third law. Is it clear, everyone, till here? I hope it is understood till here. यहाँ तक हमने पढ़ा है आज. I hope you enjoyed the session. I hope you have understood the session. Please do revise and come. Is that clear? Okay. Thank you so much. Bye-bye. Take care, everyone. We have a repeated lecture at 7:30. So in case you have missed or your friends have missed, they can attend at 7:30. Okay.